Boys and girls, let's start. Let's start with sale of firm. It's very beautiful topic, you see. एक फर्म होती है और वो फर्म क्या होती है? डिसॉल्व यहाँ पर। और ये फर्म डिसॉल्व होने के बाद में इसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाती है कंपनी में। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट इन दिस कंपनी यू डोंट हैव पार्टनर्स कैपिटल, यू डोंट हैव पार्टनर्स कैपिटल, यू हैव गॉट शेयर कैपिटल। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में कौन से पार्टनर को कितना शेयर कैपिटल दिया जाए ये देखना पड़ेगा। ऑलराइट, एज फार एज in the books of company are concerned, there is no variety in the entries, very simple entries. But when it comes to firm, there are a lot of varieties. Lot of varieties in a sense that वो ऐसा बोलेंगे कि old PSR to be maintained. अब बेटा क्या है, फर्म का रूल क्या था कि देयर कैन बी कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1 लाख बट द पीएसआर कैन बी 3:2। ए का कैपिटल 1 लाख और बी का कैपिटल 1 लाख, ये हो सकता है, मगर पीएसआर फिर भी क्या 3:2 हो सकता है। मतलब द पीएसआर नीड नॉट बी इन द सेम रेशियो इन विच द कैपिटल इज देयर इन फर्म। बट फर्म में अगर शेयर कैपिटल मिला ए को, अज्यूमिंग दैट द शेयर होल्डर इज ए 1 lakh and B is 1 lakh, then the PSR is 1:1. So the core problem in partnership firms से कंपनी में जाते वक्त एक ही प्रॉब्लम है, इसके कैपिटल रहेंगे, मान लो फर्म में ए बी का कैपिटल है 5 lakh and 10 lakh. In firm the PSR can be 1:1. फर्म में PSR can be 1:1. मगर अगर एग्जामिनर ने ये बोल दिया that the share capital should be distributed to A and B in such a ratio that their PSR is maintained. So now I am stuck up because इधर partners capital में जो payable balance दिख रहा है, buy balance brought down, A और B का कितना दिख रहा है 5 lakh 10 lakh। अब उनको जो मिल रहा है वो ऐसे तरीके से देना है कि उनका PSR should be maintained. So जो उनको shares मिलेंगे ना, shares ये इस तरीके से दो कि उनका पीएसआर मेंटेन रहे। सो दैट इज वेर यू आर गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। वंस यू विल रीड द प्रॉब्लम यू विल अंडरस्टैंड। बाकी जितनी भी चीजें हमने डिसोल्यूशन में पढ़ी सब कुछ सेम टू सेम इधर, नथिंग इज न्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीथिंग इज गोइंग टू बी द सेम। सो बॉयज एंड गर्ल्स, यू आर नाउ एक्सपेक्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चंस। प्लीज कम डाउन टू द सेल ऑफ फर्म। मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा कि प्रॉब्लम कहां पे होगी। So now listen to me. Ramesh, Roshan and Rohan were partners of the firm 3R Enterprises.
sharing profits and the losses in the ratio of 3:2:1. On 31st March 2011, their balance sheet stood as follows. Ramesh capital, Roshan's capital, Rohan's capital, GR, and what you have got? Creditors. Then people, you have also got land and building, machinery, furniture, stock, debtors, and cash at bank. On the above mentioned date, partners decided to convert their firm into private limited company and named it as 3R Enterprises Private Limited. Agreed? The company took over all the assets, including cash at bank and all the creditors for rupees 42 lakhs, payable in form of fully paid equity shares of 10 each. It recorded in its book land and building at 1640, machinery at 9,90,000, and created a provision for bad and doubtful debts at the rate of 5% on debtors. The expenses of takeover came to rupees 23,000, which were paid and borne by the company. The expenses of getting the company incorporated were 57,000. The partners distributed the company's shares amongst themselves in their PSR. Highlight this line. This is the only unique point. मतलब ये वाला एरिया आपको थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा. That's it. They settled their accounts by paying or receiving cash. इस लाइन को भी हाईलाइट करो. तुमको कोर प्रॉब्लम एरिया समझाऊंगा कि प्रॉब्लम होती कहां पे है. Prepare realization account and all the partners' capital account in firm's ledger and pass journal entries in the books of company for all its transaction. Okay? Now boys and girls, एक बार जरा चेक करो. तुम्हारे पास ये कितना है? तुम्हारे पास पीसी कितना है? टुक ओवर ऑल द असेट्स इंक्लूडिंग कैश एट बैंक 42 लाख. यस और नो? जरा एक बार देख तो लेते 42 लाख आया कैसे. लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 16,40,000 है क्या? मशीनरी का वैल्यू कितना दिया बेटा? 9,90,000. फर्नीचर कितना दिया बेटा? फर्नीचर का कुछ दिया है क्या? सो आई टेक इट एट बुक वैल्यू. बेटा स्टॉक का कुछ वैल्यू दिया है क्या? स्टॉक का एनी वैल्यू? आई टेक इट एट बुक वैल्यू. बेटा डेटर्स पर आरडीडी करना है क्या? कितना? 5%. तो कैन आई नॉट से 5,70,000? और बेटा कैश एट बैंक कुछ भी नहीं बोला है तो कितना लूंगा? 1,90,000. क्रेडिटर्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6 लाख. टेक ऑन योर कैलकुलेटर बेटा टोटल. 42,40,000. Yes or no? Are you sure about it? Anything which you are forgetting? Okay. अब बेटा क्वेश्चन ये आता है कि पीसी को माने तो कितना माने, क्योंकि तुम असेट माइनस लाइबिलिटी करते हो तो कितना है? 42,40,000 आ रहा है. मगर अगर तुम ये देखो तो डायरेक्टली गिवन है. कौन सा लूं? ध्यान रहे, टेक डायरेक्टली गिवन, बिकॉज जो बाकी की वैल्यू दी है वो वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए बोला है. इट रिकॉर्डेड इन इट्स बुक्स बोला है. So there are two things. One is how much I am going to give, and the other one is how much I am going to record in my books. In my books I am going to record it at land and building 1640 वगैरह. तो एक गड़बड़ जो तुमसे नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में वो ये है कि पीसी यहां पर डायरेक्टली दी हुई है, इसको नेट एसेट मेथड से कैलकुलेट किया तो फंस सकते हो. समझ में आया? सो लेट्स कम डाउन बॉयज एंड गर्ल्स. क्वेश्चन का स्वरूप समझते और डिटेल में. चलो एक बार फॉर्मेट बना लो बेटा. रियलाइजेशन अकाउंट. प्लीज क्रिएट रियलाइजेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ फर्म. रफ में करे बेटा. इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट.
सही है बच्चों? बेटा अगला क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रमेश, रोशन, रोहन। उसके बाद में अगला कौन सा करोगे? ये कर दीजिए 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। Okay, and then you are going to create shares in 3R enterprises. Shares in 3R enterprises. ओके बॉयज एंड गर्ल्स, अब जरा देखो आपके इसमें कौन से कैपिटल है? रमेश कैपिटल, रोशंस कैपिटल, रोहन्स कैपिटल। डिसोल्यूशन की पूरी प्रोसीजर फॉलो करो, पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दो एट बुक वैल्यू। सेल ऑफ फर्म के क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉलो द डिसोल्यूशन प्रोसीडिंग्स। सो पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली कर दो। खाली करने आती है क्या? तो चलो आओ बेटा खाली कर दे। पहला पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। Dude, what is the next item? General reserve. It would be transferred to old partners in old PSR by GR. बता बेटा कितना आएगा? 3,15,000, 2,10,000, 1,05,000. Very good. डोकरी, ये डोकरी। बेटा अगला आइटम है आपके पास क्रेडिटर्स। कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 6 लाख। ऑल राइट, देन पीपल, व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? लैंड एंड बिल्डिंग। कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। मशीनरी 11 lakhs, फर्नीचर 6,10,000, स्टॉक 840, डेटर्स 6 lakh, कैश एट बैंक 190, आउटर कॉलम 47,40,000, isn't it? Is that okay? Then what is expected next? Please check my dear friend, PC कितनी बोली है? बैलेंस शीट तो पूरी खाली हो गई है, PC कितनी बोली है? Did you notice one thing which was very important, that cash at bank was also transferred because the whole firm is sold including cash. पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में हम कैश ट्रांसफर नहीं करते थे। अमालगमेशन ऑफ कंपनीज कैश ट्रांसफर करते थे क्योंकि वहां पे भी पूरी की पूरी कंपनी बेची जाती है। ऑलराइट, ओके, लवली। अब बेटा पीसी कितना ड्यू है? 42 lakhs। सो बेटा हम किससे पीसी ड्यू बनाएंगे? 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 42 lakhs। इज दैट ओके सर? इसका सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा? 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के डेबिट साइड में
टू रियलाइजेशन अकाउंट 42 lakhs। आर्टिकलशिप करना जल्दी। हो गया, गुड। बैठ बेटा आराम से, फिर कर टेढ़ा मेढ़ा मुंह। अब बेटा ये क्या मिलने वाला पीसी में 3R एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड से? शेयर्स। ये एक लड़की है राधिका नाम की, वो बोल रही थी कि सर रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करो। जरा देख बेटा कौन खर्चा बियर करने वाला है? कंपनी बियर करने वाली। फिर भी मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर दूं, फर्म के बुक्स में क्या होता है, कर देते हैं। कहां से लोग येड़ा बोलने के लिए आते हैं ना। अरे ढोकली, ना हम पे कर रहे हैं ना हम बियर कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री हम क्यों करें? कौन करेगा इसकी एंट्री? कंपनी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ इट इज नॉट पेड, नॉट बोन बाय मी, आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एंट्री। ऑलराइट, यस। सो बेटा अभी 3R एंटरप्राइजेस क्या दे रहे हैं बेटा? ये ढोकले बोलना क्या दे रहे हैं? तो चिल्ला रहा क्या है? शेयर्स 42 लाख शेयर्स मिल रहे हैं ना अपने को। ठीक है। नाउ व्हाट इज द सेकंड थिंग विच यू हैव टू डू? अभी बेटा जी आपको ये इक्विटी शेयर्स को डेबिट मारना पड़ेगा क्या? यस। अब यहां पर क्रूशियल प्रॉब्लम क्या है देखिए, आप रियलाइजेशन अकाउंट को पहले जाके क्लोज करिए, रियलाइजेशन को जाके क्लोज कीजिए। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है मुझे जाकर बताइए। रियलाइजेशन को क्लोज करो। $60,000 प्रॉफिट आ रहा है। और बेटा ये प्रॉफिट किसको ट्रांसफर हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। यस और नो? यस। तुम्हारा आंसर सही जवाब। 30,000, 20,000 एंड 10,000। बेटा अगर तुम यहां तक फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, तो मैंने डिसोल्यूशन ही किया है। डिसोल्यूशन में सिर्फ हम क्या करते थे, यहां पर इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटी बेचते थे, यहां पर एक साथ बिक गया। एग्रीड? अब नाउ वेयर डू वी पुट अप ऑल दिस फिगर्स? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड। You're absolutely right, sir. By realization account. By realization account 30, 20, 10। बच्चों अब आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एवरीवन्स अटेंशन हियर। स्टैच्यू सुनिए, मुझे बताइए रमेश का बैलेंस कितना है क्लोजिंग? अरे कर लेना ढोकले। स्टैच्यू मतलब क्या, कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा क्या? गाड़ो छाप अगरबत्ती। हाँ 20,25,000। नेक्स्ट 13,90,000। नेक्स्ट 7,85,000। कैन यू प्लीज टेक द टोटल ऑफ दिस? 42 लाख। सर आपको कैसे मालूम? मालूम है मेरे को, कॉमन सेंस है यार, दो ही अकाउंट ओपन है अभी। एग्रीड? 42 लाख। सो बेटा इसकी टोटल 42 लाख आ रही है अगर आप चेक कर रहे हो तो, और आपके पास जो शेयर्स है वो भी 42 लाख है। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं इसको तो ये अकाउंट भी टैली, वो अकाउंट भी टैली, पेपर लई सोपा होता। टैली झाले, बट देयर इज वेयर द होल प्रॉब्लम हैज बीन। बेटा बोला क्या है यहां पर, इश्यू क्या है कि आपका अकाउंट ऐसे भी टैली हो रहा है, बट वो क्या बोल रहे हैं कि जो शेयर्स देने हैं वो पीएसआर में देने हैं। हाँ नहीं, ये वाला बैलेंस नहीं देना है, क्योंकि अगर ये बैलेंस दे दिया तो उनका पीएसआर क्या है, 3:2:1 का रेशियो बनता है क्या इनके बीच में? तो मुझे 42 लाख कौन से रेशियो में देना है? 3:2:1, सो दैट जब वो कैपिटल उधर चले जाएंगे कंपनी में तो उधर भी रेशियो में रहेगा। अब उधर लफड़ा क्या मालूम है क्या? किसी को बताना मत। उधर जितना कैपिटल रहता है ना उतना ही पीएसआर रहता है। किधर? कंपनी में। फर्म में ऐसा कंपलसरी नहीं है ना, इसलिए फर्म में ये कैपिटल उस रेशियो में नहीं है पीएसआर में,
फिर भी PSR कैन बी 3:2:1, मगर जब वो जाएंगे कंपनी में तो उनका कैपिटल उसी रेशियो में चाहिए जैसा उनको PSR चाहिए। समझ में आया? तो इसीलिए जब अब PC सेटल की जाएगी, इट वुड बी सेटल्ड इन फॉर्म ऑफ द शेयर्स विच दे आर ऑफरिंग इन PSR। हर एक प्रॉब्लम में वो बताएंगे आपको कि कैसे सेटल करना है, शेयर्स कौन से रेशियो में देना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो लवली पीपल, हम अभी यहां पे क्या करेंगे, इस शेयर्स को बांटेंगे PSR में। चलो बांट दो बाय पार्टनर्स कैपिटल। 42 लाख को 3:2:1, 21 लाख, 14 लाख एंड 7 लाख। Now what do we do next? इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, मतलब जो अकाउंट टैली हो रहा था वो अब टैली नहीं हो रहा है, हाँ या नहीं? क्योंकि रमेश को ज्यादा मिल गया है, उसको मिलना चाहिए था 20,25,000, उसको मिला है 21 लाख, और रोशन को मिलना चाहिए था 13,90,000, उसको कितना मिला है? 14 लाख, और इस बेचारे रोहन को मिलना चाहिए था 7,85,000 क्रेडिट साइड में जो मैंने लिख रखा है, मगर उस गरीब आदमी को मिला 7 लाख। क्या करोगे पता है क्या? इन पार्टनर के बीच में जो डिफरेंस है, इट इज सेटल्ड इन कैश। पढ़िए क्वेश्चन में। सो बेटा बैलेंसिंग ऐसे ही बोला ना, सो हम क्या बोलेंगे? टू कैश। आई थिंक इट इज 85,000, जाहिर सी बात है टोटल लेके रखा है ना मैंने 785, और इधर आएगा बाय कैश 75,000 और कितना 10,000। तो एक दूसरे के अंदर अगर आप कैश अकाउंट भी बनाएंगे तो टैली होगा कि नहीं होगा? यस। तो मैंने कहा तो था पार्टनर्स कैपिटल में ही थोड़ा सा इश्यू होता है, बाकी का पूरा प्रॉब्लम इजी है। रुको रुको, कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम लेके आता हूं, डोंट वरी। मैं नहीं अलाउ करूंगा तुमको इतनी देर खुश रहना। चले भी आगे, ढुकली अभी तक इधर आकर। अब हमें क्या करना है? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री में बेटा पहली एंट्री है बिजनेस परचेस टू फर्म का नाम। याद आ रहा है कि अमाल मशीन में भी हम ऐसे ही करते थे, धंधा बाय किया, फिर धंधे को क्या कर देंगे? खोल देंगे। ढुकले देख कैसे खुलता है। लैंड एंड बिल्डिंग, जो वैल्यू उन्होंने दी है उस वैल्यू पर, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, क्रेडिटर्स, और आरडीडी लिखूंगा मैं, एंड टू बिजनेस परचेस। पर ये टैली होगा क्या? नहीं। क्यों नहीं टैली होगा? क्योंकि हमने देखा था कि 42,40,000 की एसेट जा रही है, मगर दे रहा कितना है वो? 42 लाख। सो बेटा 2 CR 40,000, यस और नो? हमने निकाला तो था इधर 42,40,000, तो इसको हमने एंट्री किया कि लैंड एंड बिल्डिंग 1640, मशीनरी 990, फर्नीचर 6,10,000, स्टॉक 840, और डेटर्स 6 लाख किया, और मैंने क्रेडिट में क्या लिखा? आरडीडी। कैश एट बैंक 190, टू क्रेडिटर्स 6 लाख, हो नहीं। एंड माय डियर फ्रेंड, टू आरडीडी कर हमने एंट्री की टू बिजनेस परचेस। हमारा अकाउंट टैली हो गया, और बैलेंसिंग फिगर कहाँ डाला? CR में। ड्यूड याद आ रहा है क्या? ये एंट्री कहाँ पे की थी हमने? अमालगमेशन। चलिए 2 एंट्रीज कीजिए अभी तक की यहाँ पे। बिजनेस परचेस टू मेसर्स 3R एंटरप्राइजेस लिमिटेड। बेटा नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये सारी रिवैल्यूड फिगर्स पर लेना बेटा, ये सारे फिगर्स। टेक ऑल द फिगर्स एट रिवैल्यूड फिगर्स। Balancing figure will become CR 40,000. Now there would be a very interesting part which you will see reflect here. तुम्हें मजा आएगा अगर समझा तो। आगे एक एंट्री में इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा। कंप्लीट किया क्या? ए बेबी, छोटा बेबी कर दिया क्या? जॉनसन बेबी है वो। तेरे कंप्लीट किए सेवा मैं जाऊंगा नहीं आगे, कंप्लीट करे पूरा। पहली एंट्री समझ में आई, दूसरी एंट्री समझ में आई, तीसरी एंट्री शैल आई गिव यू द थर्ड एंट्री। क्या एंट्री आएगी थर्ड? एब्सोल्युटली राइट, कैपिटल। ये थर्ड एंट्री अपने को करनी है शेयर्स देने की। शेयर दे देते ना। सो मेसर्स 3R एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट कितना है बेटा? 42 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 42 लाख। बेटा ध्यान रहे, इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ सकता था अगर इश्यू प्राइस ज्यादा होती तो। Now there are two expenses. Dear friend, now there are two expenses. One is preliminary expenses, that is expenses on incorporation, and the other one is dissolution expenses of the transferor firm. So to put it precisely, can you see it like this? Everyone, check करो। दो टाइप के एक्सपेंस है, एक लिक्विडेशन एक्सपेंस कर देते या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, लिक्विडेशन एक्सपेंस, और दूसरा कौन सा है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। ठीक है पद्मजा, मेरी बात ध्यान से सुनो। लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विल हिट गुडविल और सीआर, but incorporation expenses will be treated as preliminary expenses. It is not because of amalgamation. Liquidation expenses I can say is because of amalgamation, क्योंकि amalgamation हुआ, sale of firm हुआ, इसके वजह से आपको आपकी फर्म बंद करनी पड़ी, तो वो गुडविल और सीआर को हिट करता है। but incorporation expenses will not hit goodwill or CR, it will hit preliminary expenses. Now the interesting part is liquidation expenses here is how much? Dissolution expenses how much? 57,000. लिक्विडेशन 23 है क्या? और इनकॉर्पोरेशन कितना है? 57,000। बेटा आपको अमाल्गमेशन याद आ रहा है? अमाल्गमेशन ऑफ कंपनी मैंने क्या सिखाया था कि अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस हो रहा है इट विल हिट व्हाट? गुडविल और सीआर। यहां पर क्या आया था बैलेंसिंग फिगर? सीआर। तो हम किसको हिट कराएंगे? सीआर। सीआर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक 23,000। CR account debit to cash oblique bank 23,000. Akib Modi, have you done this? And boys and girls, what is the next entry you are going to make? Incorporation की उसको कभी भी CR या goodwill नहीं बोलना, क्या बोलना? Preliminary expenses, because that is the expense of incorporation. So preliminary expenses account debit to cash oblique bank. अच्छा, अगर आपको बैलेंस शीट पूछी बनाने के लिए उन्होंने बैलेंस शीट बनाओ, तुम क्या डिसोल्यूशन में रहते हो? फॉर्म में रहोगे। बट बेटा भूलना मत, गलती भी मत करना, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोली तो शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, क्योंकि शेड्यूल 3 इज एप्लीकेबल टू कंपनीज।
तो फर्म से जब तुम कंपनी में घुसोगे तब यहां पर बैलेंस शीट किसके हिसाब से बनानी होती है? शेड्यूल 3। कई सारे बच्चे ऐसे नालायक भी होते हैं कि बोले सर हम तो क्वेश्चन बैंक में देखकर, क्वेश्चन पेपर में ही देखकर बैलेंस शीट बना लेंगे, फॉर्मेट याद नहीं करके जाएंगे, ऐसे बना लेंगे। इसमें नहीं हो पाएगा बेटा ऐसा, क्योंकि फर्म की बैलेंस शीट वो आपको नॉर्मल फॉर्मेट में देंगे, मगर जब कंपनी की बैलेंस शीट बनानी है तो तुमको शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बनानी पड़ेगी। समझे? तो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से एडिशनल बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट, रुपीज शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 42 लाख ड्यूड, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें कौन सा रिजर्व आएगा? वेरी गुड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसमें आएगा सीआर। कितना है बेटा सीआर? नेट फिगर बताओ। 60,000 पहले था, 60 माइनस 20 कितना था? 40,000, सॉरी 40 माइनस 23,000, 17,000। सो ये आएगा 42,17,000। बेटा फिर आएगा आपका लाइबिलिटीज, अंडरलाइन कर नॉन करंट लाइबिलिटी नील। कोई है क्या नॉन करंट लाइबिलिटी? नॉन करंट लाइबिलिटी, डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी नील, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नील, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नील। सो डायरेक्टली हम लिखेंगे सीएल करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या है बेटा? ट्रेड पेएबल, बता बेटा कितना है? 6 लाख। और कुछ? किसका प्रोविजन बेटा? ओ प्लेस चैप, वो डेटर्स में से लेस होगा। सो टोटल कितनी आ रही है इसकी? 48,17,000। फिर अगला क्या रहेगा? असेट्स। असेट्स में क्या क्या आएगा बेटा? नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट में क्या क्या आएगा बेटा? वेरी गुड, टेंजिबल फिक्स्ड असेट। बेटा है कुछ? तो दो चीजें है। पहला वाला क्या है बेटा? वेरी गुड बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग। जरा बताइए कितनी है? 16,40,000। फिर क्या है बेटा? मशीनरी कितना आएगा बेटा? 9 लाख। ओके 9,90,000। फिर और क्या बेटा? फर्नीचर कितना है? 6,10,000। चर्चा बढ़ाते रहे, हो गया क्या? फिर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्री कितना है बेटा? इन्वेंट्री 8,40,000। ट्रेड रिसीवेबल इनर कॉलम में लिखेंगे हम पहले 6 लाख लेस आरडीडी। आरडीडी होगी कितनी बेटा? कितनी है? 30,000। आउटर कॉलम में जाएगा 5,70,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,10,000। एनीथिंग एल्स? 1,90,000 पक्का क्या? आपने दो खर्चा किया, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक डिसोल्यूशन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। इन द ब्रैकेट बता बेटा, इन द ब्रैकेट 1,90,000 माइनस 23,000 माइनस, ओके वेरी गुड। कितना आएगा? 1 लाख। वेरी गुड। टैली होता है क्या? देखो
48,17,000 टैली होता है क्या? देखो नहीं हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली इधर नहीं लिखना चाहिए। शेड्यूल 3 इज नॉट दैट ग्रेट क्लियर, इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस एज ए नेगेटिव आइटम। रिजर्व्स एंड सरप्लस में से वो लेस करने को ना, तो ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से लेस कर देता हूं बेटा। चलो कोई बात नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखते हैं, इधर लिख देते हैं एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कितना है रे भाई? 57,000। अब देख बेटा टेली हो रहा है क्या? एक्चुअली नॉन करंट असेट के नीचे लिखना होता था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बिकॉज इट इज रिटर्न ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन करंट असेट के नीचे लिखो, या रिजर्व्स एंड सरप्लस में से नेगेटिव आइटम। हाँ नेगेटिव दिखा सकते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नेगेटिव दिखाए तो चलता है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉन करंट असेट के हेडिंग के अंदर, या क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस में से नेगेटिव आइटम, ईदर ऑफ द वन कैन बी डन। आई होप यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम। इन एंड आउट आपको पता चला कैसे करते हैं। Yes, we are now expected to be there on question number 2. दूध, क्वेश्चन नंबर 2। ड्यूड तो कोई हालत से लगता नहीं, इसलिए दूध ध्यान दे इधर। नाम अच्छा है, अनु एंड सोनू। हुआ क्या शुरू? Anu and Sonu were in partnership sharing profits and the losses in the ratio of 2:1. Their summarized balance sheet as on 31st March 2011 was as under: Anu, Sonu, current Anu, less Sonu highlight, less Sonu highlight। चुपके से एक बॉम्ब डाला, लेस सोनू मतलब क्या है? सोनू इज हैविंग डेबिट बैलेंस, चोनू इज हैविंग डेबिट बैलेंस। Loan from Sonu creditors, fixed asset including 2 motor car for 28,000. Congratulations. Stock debtors, bills receivable, bank, advertisement suspense account. It is a fictitious asset and it shall be transferred to partner's capital account, debit side. They decided, who decided? They decided to dissolve the business and accepted the offer of Nanak and Company Limited to acquire stock and fixed asset excluding 2 motor car at a total price of 3,35,000। बेटा उन्होंने क्या एक्सेप्ट किया? स्टॉक एंड फिक्स्ड असेट एक्सक्लूडिंग 2 मोटर कार एट अ टोटल प्राइस ऑफ 3,35,000। मतलब स्टॉक और क्या एक्वायर कर रहे हैं? फिक्स्ड असेट एक्सक्लूडिंग 2 मोटर कार। बेटा कहीं पर भी डेटर्स के बारे में नहीं बोला है, कहीं पर भी बिल्स रिसीवेबल के बारे में नहीं बोला है, बैंक को लेकर जा रहे हैं ऐसा भी कुछ नहीं बोला है। बेटा ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मतलब सिर्फ 2 ही चीजें नानक एंड कंपनी आकर लेकर जा रहा है, हाँ नहीं? सो दिस वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम वेन यू सेल इट पार्शियली टू द कंपनी एंड पार्शियली यू रियलाइज इट ऑन योर ओन। सो मूव ऑन। द डेटर्स रियलाइज्ड, अंडरलाइन द वर्ड रियलाइज्ड, मतलब डेटर्स आपने अपने आप से रियलाइज किया। वेरी गुड राधिका, कीप इट अप। 97,000। Bills receivable rupees 24,000 and creditors for goods allowed a discount of 5%. Boys and girls, डेटर्स के बारे में बताया, बिल्स रिसीवेबल के बारे में बताया, बैंक के बताने के बारे में जरूरत नहीं है। जरूरत है कि बैंक के बारे में? बैंक के बारे में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रियलाइज फॉर्मेट में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट का कुछ नहीं हो सकता, ये कमीना आदमी है। और क्रेडिटर्स फॉर गुड्स के बारे में भी उन्होंने एकदम प्यार मोहब्बत से कहा कि देखिए 5% का डिस्काउंट देंगे, ये कोई बात नहीं। The PC was discharged by cash payment of 83,000 and the allotment by the company to partners of 8,000 preference shares of 10 each valued at rupees
9 each. Highlight the point. Valued at rupees 9 each. And the balance by allotment of 9,000 ordinary shares of 10 each. तुम्हारे तक अभी तक बात पहुंची नहीं है, बात मैं पहुंचाता हूं अभी तुम्हारे पास इज्जत से। बेटा बात तो यूं ऐसी है कि 3,35,000 पीसी डिसाइड हो गई है। क्या होता है? चल छोड़ो गोली मारो। 3,35,000 क्या डिसाइड हो गई है पीसी, और ये कह रहे हैं कि हम आपको मम्मी काय नाही केलंय शपथ अहो मला सोडाव थोडी वेळ। बिल गेट्स को कहां कहां पकड़ पकड़ के मारू ना, समझ में नहीं आता कभी कभी। 3,35,000 के कितने हिस्से? 3। तुम्हें पता है ना इस क्लास में भूत एक वो आज इधर आया। सो 3,35,000 के कितने हिस्से हुए बेटा? 3। जल्दी कर नहीं तो भूत आ जाएगा, पकड़ के लेके जाएगा। कैश बेटा, कैश कितनी गई? 83,000। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के नंबर्स बताओ। नंबर्स 8,000 और वैल्यूड एट व्हाट ड्यूड? 9। इसको बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा है। कहां था तू इतने दिन? 72,000 हिमालय में था। गुड। 83,000 कैश प्रेफरेंस शेयर्स, 83,000, 72,000 बॉयज एंड गर्ल्स। बाकी का क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स। बोल कितना है बेटा? 1,80,000। बेटा अब लोचा ए ढोकली देख इधर है, ठीक है आती है सुबह सुबह। ढोकलास एंड ढोकलीस देखो इधर, ये इतने पैसे मिलने वाले, बट साला झोल क्या है पता है क्या? किसको कितना दूं? देखो किसी को कैश दे दिया मतलब वो आउट हो गया धंधे में से, वो ओनर नहीं बनेगा कंपनी में। किसी को प्रेफरेंस शेयर दे दिया तो वो वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे उसको, और जिसको इक्विटी शेयर्स मिल गया उसका चलन चलेगा। ही विल बी एबल टू पास रेजोल्यूशंस इन दी कंपनी। तो इसीलिए प्रॉब्लम जो है ना सेल ऑफ फर्म में, वो इधर से शुरू होती है। उसके पहले पूरा बिंदास होकर डिसोल्यूशन करने का। 3 चीजें मिल रही है आपको, उन 3 चीजों में से किसको कितना मिलेगा। तो इसके लिए आगे की प्रॉब्लम ध्यान से पढ़िए, किसको कितना मिलेगा। देखो डिस्चार्ज ऑफ पीसी के बारे में ध्यान से देखो। द पार्टनर्स एग्रीड दैट फॉलोइंग शुड बी द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अनु टू टेक ओवर 1 मोटर कार एट अ वैल्यू ऑफ ₹25,000। हाँ, सोनू द अदर कार एट ₹15,000। नॉट अ प्रॉब्लम, ये एंट्री में सिखाऊंगा, बट ये एंट्री सिखा चुका है डिसोल्यूशन में। अनु लेकर भागा मोटर कार, एंट्री कैसे आएगी? अरे ढोकले बराबर से सोच के बता। तुम्हारी सारी बैलेंस शीट किधर खाली होकर बैठी है? रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या होगी? अनु अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ या नहीं? तू वो बोला क्या? अनु सुनाई नहीं दिया? अनु नहीं सुनाई दिया? तू क्या बोल रहा था? बशी गया गाँव पर फिर बेटा नाचत नाचत। एंड सोनू द अदर कार, व्हाट इज द एंट्री? सोनू टू रियलाइजेशन। एग्रीड? कितना? 15,000। सिर्फ नालायक बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करते हैं, सिर्फ नालायक बच्चे करते हैं, और प्यारे प्यारे बच्चे नहीं करते। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस की एंट्री करते हैं। रियलाइजेशन तो अपने आप एडजस्ट कर लेता है ना प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस शीट खाली होती है बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज खाली होती है बुक वैल्यू। असेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में बैठी रहती है। फिर तुम सेल करते हो तो उसके उल्टे साइड में लिखते हो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और लॉस एडजस्ट हो जाता है। हाँ, ए हो गया रे। बी, सोनू म्हणती है सोनू टू एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स फॉर हर लोन। सोनू म्हणती है, बरोबर बोल रहा हूं, हर बोला है। सोनू टू एक्सेप्ट प्रेफरेंस शेयर्स फॉर हर लोन टू द फर्म, द रिमाइंडर टू बी टेकन ओवर बाय अनु। अब ढोकले सोनू क्या बोलती है? माझं लोन पण आहे, मेरे को लोन के पैसे पाहिजे बोलती है वो। अपन बोलते दे देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर से क्या पेमेंट होगा बेटा? लोन ऑफ सोनू कितने में जाता रहे? 63,000। शेवंती तू में से 63 गया तो 9,000 बचता है। ये 9,000 अनु बोलती है ठीक है मला पण द्या ना थोडेसे, तो उसको दे देते 9,000।
ड्यूड, ठीक है ना? लास्ट टाइम कब हंसा था बेटा तू? तू नहीं, तेरे बाजू वाला। कब हंसा था बेटा लास्ट टाइम? सीबीडी पास हुआ था तब हंसा था। ठीक है। The ordinary shares to be taken by Anu and Sonu in proportion of their fixed capital. Boys and girls, what is the proportion of fixed capital? जरा देखिए अपनी नजर से, कितना? 10:5:4 और 10:8। ये छोटी छोटी बराबर है क्या? कहाँ पे बता? कहाँ पे? नहीं, मुझे रेशियो बता। कोई नहीं बताएगा, इस नालायक को बताने तो, ढोकले को। हाँ क्या? 10:2। इसके पहले मुड़क क्यों रहा था? किसके याद में मुड़क रहा था? बी हो गया, सी हो गया। डी, द बैलेंस इज सेटल्ड इन कैश। तो बेटा बैलेंस सेटल कर देंगे कैश में। सो बेटा आपको समझ में आया क्या? फॉर्म की बुक्स क्लोज करेंगे, एकदम क्लियर रखना माइंड में। अपनी प्रॉब्लम शुरू होगी जब अपने को पीसी मिल जाएगी, उसके सेटलमेंट के वक्त से अपनी प्रॉब्लम शुरू होगी। क्लैरिटी है? सो बिंदास तो क्या, चलो बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट खड़ाखट, किसी को बताना मत। लेकर डूबेगी छोरी। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट जरा बेटा फुर्ती करो यार, फुर्ती करो। वो उठाओ वहां से, नीचे से उठाओ। ओके, हाँ, जेब में डाल के लेके जाते रहे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, वेरी गुड। कैश अकाउंट इसलिए बनाया बेटा बिकॉज कैश इज नॉट टेकन ओवर। एंड वैष्णवी, और कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा? वैष्णवी को नहीं पता, कोई बात नहीं। कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है वैष्णवी? बाकी को तूने जन्म दिया क्या रे? बहकी बहकी बातें कुछ भी करते रहते। पार्टनर दो ही है, अनु सोनू। अनु सोनू। मैं सारे कॉलम भी गिन लू ना तो भी 8 नहीं होते, 6 ही होते। पर्टिकुलर्स, ऑलराइट। अनु सोनू, ब्यूटीफुल नेम नहीं? फिर बेटा अभी आपको किसका बनाने का, कौन लेके जा रहा है वो? नानक एंड कंपनी ना, नानक एंड कंपनी लिमिटेड। कोई नाम होता है क्या यार? कोई बात नहीं, नानक एंड कंपनी लिमिटेड। नानक एंड कंपनी बेटा आपको कितनी चीजें दे रही है? 3। उसमें से एक का अकाउंट बना हुआ है आपके पास, कैश। 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे, इक्विटी शेयर्स इन नानक एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन नानक। इक्विटी शेयर्स इन नानक लिमिटेड एंड प्रेफरेंस शेयर्स इन नानक लिमिटेड। वैसे हंसा सिर्फ पुरंदर नहीं था, पुरंदर था क्या वो? हंसा सिर्फ तू नहीं, बाकी सब लोग हंसे थे। कौन था पीछे वाला था क्या? छोटी आंखें वाला था? चलो चलते। आर यू रेडी बॉयज? ए लातूर, लातूर पहले क्या करे बेटा? एम्प्टी द बैलेंस शीट।
So how do you empty the balance sheet, boys and girls? By debiting realization account. Thank you, sir. To fixed asset. To fixed asset. चलो जल्दी जल्दी करो, किसी को बताना मत. बेटा फिक्स्ड एसेट को बेटा थोड़ा सा अलग तरीके से करेगा समझाने के लिए. बेटा 140 में से 28 माइनस कर देता हूं. विल ट्रांसफर सेपरेटली ताकि आपको कंट्रोल पता रहेगा कि कैसे मूव हुआ. 140 माइनस 28 कितना होगा? 1,12,000. और इधर तूच मोटर कार 28,000 चलेगा ना? एक साथ भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है. टू स्टॉक 70,000. टू डेटर्स 1 lakh. टू बिल्स रिसीवेबल आई बिलीव इट इज 25,000. तू बैंक जाएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बैंक अकाउंट जाएगा नहीं जाएगा. ऐसी 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 गंदी गंदी बातें नहीं करते बेटा. अबे रियलाइजेशन में नहीं जाएगा ढोकली. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. बोल बेटा कितना है? यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, 20,000. अच्छा फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है क्या? राइट कहां जाएगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड में. बेटा पीएसआर में क्या? टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट. बेटा बताओ मुझे 15,000 को 2:1 में करेंगे तो 10,000 और 5,000 आएगा क्या? जॉनसन बेबी बराबर है. कैपिटल बेटा इधर लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000. फिर करंट अकाउंट बेटा इधर ही ट्रांसफर कर देता हूं. बेटा कई लोग की बलि इधर चढ़ जाती है क्योंकि वो क्या करता है ना, वो बच्चा देखता ही नहीं कि उधर लेस था और वो एग्जामिनर है ना उधर बैठता है पेपर चेक करता है, उधर ही जाके देखता है पहले क्या किया है और फिर पकड़ लेता है. इधर टू करंट अकाउंट डेबिट में जाएगा बेटा ध्यान से. सोनू के यहां पे 23,000 बिकॉज द वर्डिंग इज लेस. देन लवली पर्सन लोन फ्रॉम सोनू लेकर जाते हैं उसको कहां पे? रियलाइजेशन. या फिर अगर आप चाहो तो इसका सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हो कि लोन फ्रॉम सोनू इज व्हाट? पार्टनर्स लोन. मैंने आपको ये सिखाया था कि उसका अकाउंट अलग से बनाओ. सो कोई दिक्कत नहीं, लोन फ्रॉम सोनू एक अलग से अकाउंट बनाओ. रिवीजन बैच है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए तुमको अकाउंट बनाने के लिए. बस जैसे मैं बनाता हूं वैसे बनाने का. थक गई बेटा, बहुत मेहनत करती है तू. राधिका बेचारी बैठे बैठे थक जाती है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 63,000. Creditors for goods, where do we take it, dude? Sir, you are absolutely right, sir. You are amazing, sir. By creditors, 1,10,000. They decided. Who decided? They decided. They means Anu and Sonu. To dissolve the business and accepted the offer of Nanak Bhai to acquire stock and fixed asset. बेटा हल्के से स्टॉक को टिक मार्क करो और फिक्स्ड एसेट को टिक मार्क करो. ये दो ही चीजें लेकर गए एट अ टोटल प्राइस ऑफ 3,35,000. सो बेटा इधर लिखो बाय नानक एंड कंपनी. कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर? हाउ मच बेटा? 3,35,000. ड्यूड कैन आई हैव द सेकेंड इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन? नानक अकाउंट के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा बेटा? 3,35,000. ऑलराइट बेटा. बेटा अब इनसे क्या क्या मिल रहा है हमको तो पता है, हम बना देंगे क्या? इसका खत्म कर देंगे क्या? क्या क्या मिल रहा है? 3 चीजें मिल रही क्या? कैश, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स. सो लिखो बेटा बाय कैश. बेटा कितना कैश मिल रहा है आपको? 83,000. बाय प्रेफरेंस शेयर्स नंबर्स कितने बेटा?
8,000 into 9, 72,000, and buy equity shares. Can I have the figure, please? 9,000 into 10, 90,000. देखो बेटा जरा टैली हो रहा है क्या? Yes, yes. So, I'm sorry. Valued at 9 बोला था प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए नहीं बोला है बेटा. इसका मतलब यहां पर शेयर इज नॉट वैल्यूड एट 10, शेयर इज वैल्यूड एट 20. तो अपने को शेयर कितने का मिलेगा बेटा? 1,80,000. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इसकी एंट्री सिक्योरिटीज प्रीमियम की विल कम इन द बुक्स ऑफ नानक एंड कंपनी, in the books of transferee. It is never in the books of transferor firm. Do you remember that? We did it in amalgamation. Yes, sir? Okay, not a problem. Will you tally this? Now, I have created how many accounts? 2. So, come down to the equity shares account, beta. Write down here 2. Nanak and Company Limited. बोलो कितना है? 1,80,000. एंड बेटा प्रेफरेंस शेयर्स के यहां पर क्या लिखेंगे? 2 नानक एंड कंपनी, 72,000. और एक बेटा इफेक्ट जगह जाना रह गया है, कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक, 83,000. टू नानक एंड कंपनी लिमिटेड, 83,000. Yes, will you please tick mark? Will you please tick mark all this? Have you done this? Have you tick marked this? Now, boys and girls, please move on. The debtors, अच्छा मोटर कार का आगे देखेंगे. द डेटर्स रियलाइज्ड 97,000. कम डाउन टू द रियलाइजेशन अकाउंट. बेटा डेटर्स को टिक मार्क करो और इधर लिखो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. अंडरलाइन कर लिखेंगे डेटर्स. कितना लिखेंगे बेटा डेटर्स? 97,000. इनर कॉलम में लिखो अगर पॉसिबल है तो. बेटा फिर बीआर का भी बोला है, कितना? 24,000. And creditors allowed discount to cash oblique bank account. Creditors, बेटा 1,10,000 minus 5%, कितना आएगा बेटा? 1,04,500. और 97,000 plus 24,000, 1,20,000. Have you understood this? Have you understood this? We need to give how many effect? 2 effect to cash oblique bank. So इधर क्या लिखेंगे? 2 टू रियलाइजेशन ना कितना है? 1,21,000. और क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन, ये क्रेडिटर का सेटलमेंट किया कितने में? 1,04,500 आई गेस. बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में आपने कौन सी चीजों को टिक मार्क कर दिया है? सब चीजों को टिक मार्क कर दिया है एक्सेप्ट मोटर कार. हाँ या नहीं? बेटा मोटर कार कौन लेकर गया है? The PC was to be discharged by cash payment. We have made the entry of 83,000. Allotment by the company to partner 8,000 preference share valued at 9 each. And the balance by allotment of 9,000 ordinary shares of rupees 10 each. They haven't given you the value. The partners agreed that following should be the basis for distribution on dissolution of the firm.
Anu to take over one motor car at a value of 25,000 and Sonu the other car at 15,000. So can I not say buy Anu motor car and buy Sonu motor car? बेटा अनु कितने में लेकर गई और सोनू 15,000. Can we have the second effect of it, sir? Right? So please come down to the partner's capital account. I'll write down to partners capital account. अनु का कितना आएगा बेटा? Oh, I'm sorry, to realization account. Thank you, sir. 25,000 and what? चलो क्लोज करो इसको. हो गया? अब बेटा क्या बोला? सोनू ने बोला कि मुझे शेयर्स दे दो. कौन से वाले? प्रेफरेंस शेयर्स. एग्रीड? बेटा लाइबिलिटी सारी सेटल हो गई है. टिक मार्क कर दो, लाइबिलिटी सारी सेटल हो गई है. हम हमारे शब्दों से नहीं मुकरे. हमने पहले सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल किया. अब हम कहां जाएंगे? उसका लोन जो बैलेंस है वो सेटल करेंगे. सो कम डाउन टू द लोन का बैलेंस. अरे नलायक. प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन. सो बेटा इसको क्या दे देंगे? टू प्रेफरेंस शेयर्स. कितना? 63,000. सो बेटा इधर आप लिखेंगे बाय लोन फ्रॉम सोनू 63,000. लोन का सेटलमेंट हुआ क्या बेटा? अब बेटा बचा हुआ कौन लेके गया? अनु. बाय अनुज कैपिटल. कितना आ रहा बेटा फिगर? 9,000 एंड इट टैलीज. अनु के डेबिट में आ जाओ बेटा. टू प्रेफरेंस शेयर्स क्या? 9,000. That's absolutely right. Stunning. Now you have got what? Two accounts which are open in your books. First close the realization account. And then there is a cash and shares account. 166,500. तो बेटा profit है loss है? So two partners capital account. अनु सोनू. अनु का बताओ बेटा कितना है? 1,11,000 है क्या? और दूसरे वाले का? 55,500 है बेटा. चेक करो. सभी लोग कैलकुलेटर यूज करेंगे, सिर्फ गधेड़े बच्चे कॉपी करेंगे. जो गाय छाप अगरबत्ती है वो कॉपी करेंगे. क्या बेटा? और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आ जाओ बेटा. बाय क्या? रियलाइजेशन अकाउंट. हाँ अनु का बताओ कितना है? 1,11,000. 55,500. You are again right, sir. Now we are left with two accounts. One is cash, ordinary shares and partners capital. दो अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल में बांटना है. ऑर्डिनरी शेयर के बारे में क्लियरली बोला है कि ऑर्डिनरी शेयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. व्हाट इज द रेशियो ऑफ फिक्स्ड कैपिटल रेशियो? 5:4. श्योर? ओके. सो प्लीज कम डाउन टू द ऑर्डिनरी शेयर्स अकाउंट. आई विल राइट डाउन बाय अनुज कैपिटल एंड बाय सोनूज कैपिटल. तो कितना आएगा बेटा? 1,80,000 इंटू अनु का 5/5 मतलब अनु का 5 है क्या? 5/9 और इसका 1,80,000 इंटू 4/9 1,80,000.
टैली मारते क्या बेटा? अगर पिछला क्वेश्चन याद होगा आपको तो उसमें ऑर्डिनरी शेयर्स पीएसआर में बांटे थे हमने, इस बार कैटेगरिकली बोला है कैपिटल रेशियो में। तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कौन से रेशियो में बांटना है, जैसा आपको प्रॉब्लम बोलेगी वैसा बांटना पड़ेगा। सही है ना? चलो आओ बेटा, अब इसको कहां पे लेके चले? यू आर अगेन राइट सर, अनडाउटेडली राइट। 2 इक्विटी शेयर्स, ज्यादा खुश मत हो। 2 इक्विटी शेयर्स 1,80,000। बेटा बैलेंसिंग फिगर इधर मैच होगा कैश के साथ। अनु का कितना आ रहा है बेटा? शी इज गोइंग टू विड्रॉ, अनु इज गोइंग टू विड्रॉ। ओके, तो विड्रॉ करा तो टू कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर। बताएगी बेटा कितना है? ओके, 12,500 इज व्हाट यू से। सेकेंड इफेक्ट कहां? कैश में बाय अनुज कैपिटल 1,07,000 बाय सोनूज कैपिटल। कितना बता रही बेटा? देख बेटा टैली हो रही क्या? कितना में ना? ओके, that's right, that's again right. So I've done with 2 problems. I believe you are finding it easy. Now we do the last problem of this revision batch, this chapter. Question number 4th. Question number 4th. Okay. Before I do it, before I do this problem, I am expecting you to try question number 4 on your own. Question number 4 has got some तड़का of group 1 and group 2 together. मतलब कई सारे बच्चों को लगता है ना एडवांस अकाउंट्स में सिर्फ एडवांस अकाउंट्स की प्रॉब्लम आएगी। इसमें पहले रिटायरमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको आपकी फर्म को सेल करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, क्वाइट इंटरेस्टिंग। So question number 4th is what I want you all to give a try right now. Give a try.
Take the question. Okay. No, sir. But still you'll have to do, dude. A, B, and C carried on business in partnership, sharing profits and the losses in the ratio of 1:2:3. Easy line. They decided to form a private limited company. AB Limited, Private Limited. ये कंपनी का नाम है. C बोला मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. C is not interested to take over the shares in AB Private Limited. The authorized capital of the company is 12 lakh divided into 12,000 ordinary shares of 100 each. The company was incorporated and took over goodwill as valued and certain assets of the partnership firm as on 31st March 2012. The balance sheet of the firm on that date was as follows. They say capital ABC, current account AB, A's loan, add interest accrued, current liability creditors, fixed asset, machinery, land, motorcycle, furniture, current asset stock, debtors cash in hand, and C's overdrawn balance. C who retired was presented by other partner A and B with one motorcycle valued in the books of firm at rupees 9,000. इस लाइन का मीनिंग क्या है? जो रिटायर हो रहा था सी बोला आई एम गोइंग, तो ए एंड बी बोला कि ये फर्म की एक मोटर गाड़ी है, हमारी तरफ से आपको गिफ्ट. अब आपको ध्यान रखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा ध्यान से देखना. मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो. एवरीवन प्लीज पे अटेंशन. सपोज इफ ऐसा बोला ए withdraws car and gifts it to wife. A withdraws car and gifts it to wife from the business. तो तुम कौन से कैपिटल अकाउंट को हिट करोगे? ए को या वाइफ को पकड़ोगे? नहीं ना. वैसे बेटा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने क्या बोला है? ए एंड बी गिफ्ट टू सी. अगर तुमने गलती से भी सी के कैपिटल अकाउंट में हिट करा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी. क्योंकि देखो कर क्या रहे हो, सी तो बोल ही नहीं रहा ना मुझे दो. सी के कैपिटल अकाउंट को अगर विड्रॉ करने की एंट्री की टू मोटरसाइकिल, अगर सी को डेबिट किया इसका मतलब सी का जो विड्रॉएबल बैलेंस है वो कम हो रहा है, विच इज नॉट टू बी डन. सी नहीं मांग रहा है ना, उसको गिफ्ट कौन दे रहे? ए और बी. सो दिस मोटर कार इधर ना डेबिट होते हुए कहां डेबिट होगी? ए और बी के कॉलम में. अब जाहिर सी बात है, इधर तुम वाइफ को गिफ्ट दे रहा था पहले ए, अब वाइफ को ना देते हुए किसको गिफ्ट कर रहा है? सी को. तो सी को नहीं डेबिट होगा वो, जैसे वाइफ को नहीं हो रहा था. किसको डेबिट होगा? ए और बी को. क्लियर ना? गुड ड्यूड, कूल. ये पहला पार्ट समझ में आया. द रिमेनिंग मोटर साइकिल वर सोल्ड इन द ओपन मार्केट फॉर 13,000 कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. की बैलेंस शीट खाली हो चुकी होगी ना अपनी. सी ऑल्सो रिसीव्ड सर्टन फर्नीचर फॉर विच ही वॉज चार्ज्ड रुपीज 2,000. अंडरलाइन द वर्ड चार्ज्ड. पिछली बार ऐसा कोई शब्द यूज नहीं किया था चार्ज्ड. इस बार एंट्री होगी सीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्लियर? The debtors which are all considered good were taken over by C for rupees 40,000. C's account to realization account. Next. A and B were charged in their profit sharing ratio for the book value of motorcycle presented by them to C. अक्सर कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, वो ट्रांजैक्शन ऊपर देता है जब तुम सोचते हो कि ये सी को जाना चाहिए, और फिर धीरे से नीचे लिख देता है कि वो मोटरसाइकिल शुड बी चार्ज टू होम ए एंड बी ऑफ द बुक वैल्यू. अबे वो नहीं बोलते तो भी अपन वही करते ना. सो अभी आपकी एंट्री क्या हुई? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इन विच रेशियो? पीएसआर, मोटरसाइकिल का वैल्यू. तुझे इसी में क्वेरी थी, हो गई सॉल्व. गुड. It was agreed that C was not willing to take shares in AB Private Limited and was discharged first by providing necessary cash. मतलब जितना भी C का बैलेंस रहेगा उस C के बैलेंस को आप पेमेंट कर कर खत्म कर दोगे. और मान लो अगर कैश कम पड़ रही हो तो कौन ले जाएगा? A and B should bring cash if necessary. AB Private Limited took over the remaining furniture and fittings at a price of 13,000. Machinery for 1,25,000, stock at an agreed value of 2 lakh, and the land at its book value.
The value of the goodwill of the partnership firm was agreed at rupees 88,000. The creditors were settled by the firm for 70,000. His loan together with interest accrued was transferred to his capital account. Boys and girls, कहाँ बोला है पीसी कितनी है? निकालनी पड़ेगी. So this is what? Net asset method of PC calculation. कहीं पर भी आपको ये नहीं पता चला कि कितनी पीसी है, पीसी आपको निकालनी पड़ेगी. जो नई कंपनी टेक ओवर कर रही है उन सारी चीजों को आप क्या करेंगे? ऐड. The PC was discharged by the company by issue of equal number of fully paid up equity shares at par to A and B. फिर बोल रहे prepare realization account, capital account of the partner and cash account. Also draw the balance sheet of AB Private Limited. अब इसमें आपके पास दो ऑप्शन है. या तो पहले ही आप पूरी बैलेंस शीट को खाली कर दो रियलाइजेशन में, या पहले सिर्फ रिटायरमेंट का इफेक्ट दो. रिटायरमेंट होने के बाद में बैलेंस शीट खाली करो. दोनों में से आप कोई भी एक चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो, द वे यू वांट इट. ठीक है, तो चलिए आइए. हालांकि उतना तवज्जो देने जैसी कोई बात नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 4 है. आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, रियलाइजेशन अकाउंट बना दीजिए. रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाइए बेटा जी. It's just that be little quick. Be little quick. Realization account बना लिया, कोई बात नहीं बेटा, बैठो आराम से. Realization account, yes, I would write. बेटा फिर बनाइए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC. गोटिया सरल बस. गोटिया. Then you have got cash account. Then people, you are going to calculate purchase consideration. Here it goes, purchase consideration. क्या बेटा? क्या पता, मुझे नहीं पता. और बेटा जी AB प्राइवेट लिमिटेड का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. फिर शेयर्स इन AB प्राइवेट लिमिटेड. फुर्ती से करो बेटा. द लास्ट बैलेंस शीट. शेयर्स इन AB प्राइवेट लिमिटेड के बाद में बैलेंस शीट. एज लोन अकाउंट बनाना है. अरे वो बोला है ना कि इट इज ट्रांसफर टू हिज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो डायरेक्टली कर दूंगा मैं. चलिए बच्चों, हो गए आप रेडी? सो यस, इट्स टाइम दैट वी फर्स्ट एम्प्टी द बैलेंस शीट. कम डाउन टू द रियलाइजेशन अकाउंट. असेट साइड डेबिट में लिखेंगे हम टू फिक्स्ड असेट या सन्ड्री असेट. बेटा खाली करते जाइए. मशीनरी बुक वैल्यू पर 1,20,000. लैंड 1,74,000. बेटा यहां पे गलती से 2 नहीं आया, 2 मशीनरी लिखिए, 2 लैंड लिखिए, क्योंकि पोस्टिंग लैंड अकाउंट को जानी चाहिए, इसलिए 2 लैंड के आगे आना चाहिए, इधर 2 आना चाहिए. आगे मोटरसाइकिल
30,000. To furniture, 11,000. To stock, to debtors, 43,000. और फिर कैश इन हैंड अकाउंट बनाया क्या? इसका आउटर कॉलम में टोटल कितना है? अच्छा, तुमने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखा था, ठीक है, कोई बात नहीं. 6,13,000. कैश अकाउंट के कौन से साइड में आएगा बेटा जी? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हैव यू कंप्लीटेड दिस? पीछे वाले डोकरे. अब जरा ध्यान से देखना बेटा. सीज कैपिटल वॉज ओवर ड्रॉन, सो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आएगा क्या? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. सी के डेबिट साइड में 1 लाख. कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा बेटा. ए बी सी 1 2 3 1 लाख 2 लाख 3 लाख. इट्स सो सिंपल. करंट अकाउंट उसी के नीचे. आई एम ग्लैड दैट मेजॉरिटी ऑफ वर एबल टू डू एटलीस्ट एम्प्टिंग द बैलेंस शीट. दैट्स व्हाट द राइट स्पिरिट इज. और फिर क्या हुआ बेटा? एज लोन और इंटरेस्ट एक्रूड, ये दोनों हमको कहां पे ट्रांसफर करना है? एज कैपिटल अकाउंट. बोला था ऐसा. सो बाय एज लोन 28,000 और उसका इंटरेस्ट एक्रूड भी इधर ही जाएगा 2,000. हाँ बेटा, 1-2 मिनट. कंबाइन कैसे होगी बेटा? अगर 2 अकाउंट है तो कंबाइन एंट्री कैसे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं. एज लोन किया, एज लोन को क्रेडिट बैलेंस दिया, फिर इंटरेस्ट एक्रूड वहीं पे ट्रांसफर किया, वहां से कैपिटल को ट्रांसफर किया. वन एंड द सेम. सेम है ना? करंट लाइबिलिटी कहां जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. टिक मार्क कर दो बेटा. बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई क्या? बैलेंस शीट पूरी खाली हो गई क्या? Now what you are going to do is you are first going to close retirement. You are first going to close retirement. Are you understanding my point? How do you close retirement? तो जो मोटर कार दिए, किसको किसको मोटर कार दिया? सी को. मगर किसने दिए? ए एंड बी को. तो डेबिट किसको होगा? ए और बी को. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उस मोटरसाइकिल को टिक मार्क करो. पार्शियली टिक मार्क करो, पूरा नहीं बिका है वो. पार्शियली टिक मार्क करो. अब क्रेडिट साइड में आ जाओ बेटा. क्रेडिट साइड में आ जाओ और इधर क्या लिखोगे? बाय प्रेजेंट टू सी. बट ये सी को डेबिट नहीं होगा, ए और बी को होगा. इन विच रेशियो बेटा? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो कितने की थी बेटा मोटरसाइकिल वो बुक वैल्यू पर? 9,000. सो 9,000 ए को जाएगा, बी को जाएगा, उनके पीएसआर में. पीएसआर क्या बेटा? 1:2. सो ए को कितना जाएगा बेटा? 3,000 और बी को 6,000. आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 9,000. मोटरसाइकिल अभी तक पार्शियली गई है बेटा. ये इंटरेस्टिंग था. हाँ वैष्णवी जी, अब क्या करेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. यस और नो? 3,000 एंड 6,000. ए और बी को टिक मार्क. बेटा फिर क्या बोला है? फिर क्या बोला बेटा? देखो, सी ऑल्सो रिसीव्ड सर्टन फर्नीचर फॉर विच ही वॉज चार्ज्ड 2,000. कहां पे डाले? सी इज कैपिटल टू रियलाइजेशन. तो बेटा डायरेक्टली इधर लिख दूंगा टू रियलाइजेशन. बेटा सी को और भी कुछ दिया है क्या? यस, डेटर्स भी दिया है. डेटर्स दिया है कि देखो.
सो क्या मैं टोटल 42,000 से सी को डेबिट कर दूं क्या? हाँ या ना बेटा? तो मैंने डेबिट किया 42,000 से सी को. कूल. इसका सेकेंड इफेक्ट कहां देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सी इज कैपिटल, फर्नीचर, डेटर, फर्नीचर 2,000 एंड 40,000, आउटर कॉलम 42,000. ये बेटा बची हुई मोटरसाइकिल कितने में बेची? बची हुई मोटरसाइकिल 13,000 में ना. सो मैं इधर करता हूं बाय कैश. बाय कैश कितना लिखेंगे? मोटरसाइकिल 13,000. तो मोटरसाइकिल टिक हो गई बेटा. स्टॉक पार्शियली टिक हुआ. स्टॉक पार्शियली टिक हुआ. डेटर्स को टिक कर दो. डेटर्स को टिक कर दो और स्टॉक पार्शियली हुआ. बेटा अभी कैश अकाउंट में आया क्या? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कितना लिखेंगे? 13,000. एग्रीड ड्यूड? सो कैश के डेबिट साइड में आप लिखेंगे 13,000. डन. बेटा अब मेरे हिसाब से रिटायरमेंट का मेजॉरिटी पार्ट खत्म हो गया है. हाँ या ना? अब हमें करना क्या पड़ेगा? सी जाने के पहले क्या बोलेगा? बाकी के एसेट का क्या हुआ? उनका भी तो रिवैल्यूएशन करो. बाकी के एसेट का क्या हुआ? सो फिर ए एंड बी ने बोला कि बाकी के एसेट हम लेकर जा रहे हैं. तो इसके लिए आपको पीसी निकालना जरूरी है, नहीं तो रियलाइजेशन से प्रॉफिट और लॉस नहीं निकलेगा. रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस नहीं निकला तो आपका प्रॉफिट नहीं निकला तो सी का क्लोज नहीं होगा, और सी का क्लोज नहीं होगा तो हम उसको पेमेंट नहीं कर पाएंगे. समझ में आ रहा है ना? तो पहले चलिए आप कहां चलेंगे? पीसी निकालने के लिए. बेटा ये जो कंपनी है जिसका नाम है एबी प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या क्या खरीद रही है हमसे? फर्नीचर एंड फिटिंग्स. बेटा एक बार बता दो क्या क्या खरीद रही है? फर्नीचर कितने में खरीद रही है? 13,000. फिर नेक्स्ट मशीनरी 1,25,000. फिर स्टॉक 2 लाख. लैंड कितना बेटा? बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 1,74,000. एनीथिंग एल्स? गुडविल एक नई चीज आ रही है. कितनी है बेटा गुडविल? 88,000. बेटा गिव मी द एनीथिंग एल्स. नो. 6 लाख. और बेटा वो कोई लाइबिलिटी लेकर जा रही है क्या हमारी? क्रेडिटर्स. कितनी है क्रेडिटर्स? The creditors were settled by firm. No. So there is none of the liability which is taken by the company. None of the liability. So beta liability is how much? 0. Nil. So beta what is the PC? PC is 6 lakh. That's it. Please complete this. Have you done? Now my request to you all is, please come down to realization account. पहले ये करना मत भूलो कि इधर टिक मार्क कर दो कौन सी एसेट बिक गई है. मशीनरी गई, लैंड गया, फर्नीचर भी गया, देख लो बेटा, और स्टॉक बचा कुछ है ये भी गया. स्टॉक बचा था ना पहले 2,000 कौन ले गया था? स्टॉक कोई लेकर नहीं गया क्या? ओ सॉरी, फिर मैंने गलती से टिक कर दिया. फर्नीचर कौन ले गए? 2 लोग ले गए, है ना? अच्छा अब मेरी बात सुनिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे? बाय कौन सा प्राइवेट लिमिटेड है? एबी प्राइवेट लिमिटेड.
कितना आएगा बेटा? 6 लाख, ठीक है बेटा। मगर अभी भी कुछ लाइबिलिटीज पेंडिंग है, पेमेंट करना, हाँ या नहीं? तो ये क्रेडिटर्स को टिक मार्क कर रही है और यहां पर लिखिए टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बेटा क्रेडिटर्स कितने में सेटल हुए? 70,000। डू यू एग्री? $70,000 है बेटा। अब बेटा सेकेंड इफेक्ट क्या करने का? अभी क्रेडिटर्स को पेमेंट जो किया वो कैश ऑब्लिक बैंक को जाएगा। सो कैश ऑब्लिक बैंक के क्रेडिट साइड में लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, यस राइट 70,000। और एबी प्राइवेट लिमिटेड के डेबिट साइड में एबी प्राइवेट लिमिटेड के डेबिट साइड में क्या बेटा, कितना पीसीडी हुआ? 6 लाख, हाँ है ना? थोड़ा सा सब्र करो, अभी हम पहले उसको रिटायर करते। कौन रिटायर करते? किसको रिटायर करते? सी को। सी को बोलते आ भाई बेटा तू पहले आ जा, रियलाइजेशन अकाउंट में आओ, प्रॉफिट एंड लॉस निकल कर बताओ मुझे। 51,000 इज द प्रॉफिट, इज व्हाट द कॉल इज। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? 1:2, कितना? 8,500, 17,000 एंड 25, 500, 51,000 आया क्या? What do we do next? We transfer these balances to partners capital account. Shall I? By realization account, these are the balances I have transferred. बेटा जरा सी को पूछो कितने रुपए चाहिए उसे। सी को पूछो कितने रुपए चाहिए? 1 लाख। बिंदास्त होके उसको कैश दे दीजिए। 1,83,500 कैश दीजिए पहले उसको, क्योंकि सी आने वाला तो है नहीं ना, उसने कोई शेयर स्वीकार किए, उसने क्या कैश मांगी, सिर्फ कैश दे दी उसको। 325,500 पर टैली हो रहा है क्या? क्या बेटा बोल? 83,500 नहीं आ रहा है? नहीं आया, ठीक है। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा क्या बेटा? सीज कैपिटल कितना आएगा? 183,500। बेटा कितनी गंदी बात है, देखो ये है तुम्हारे पास कैश, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है कैश को, कोई तो जुगाड़ करके लाएगा ना कैश। कौन है वो? हमारे महारथी ए और बी। कैसे कैश लेकर आने की बात कर रहे हो? वो कैसे कैश लेके आएंगे बोलो? ए एंड बी शुड ब्रिंग कैश इफ नेसेसरी। देखो नेसेसरी है क्या? है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो फिर इनसे कैश मंगाते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने का शॉर्टफॉल है? 153,500। तो बेटा एज कैपिटल और बीज कैपिटल से कैश मंगाते हैं। बट मेरा बच्चा घूर रहा है, 2 मिनट। बच्चा बोल रहा है सर ये तो समझ में आ गया, एज कैपिटल बीज कैपिटल, मगर कौन कितनी कैश लेके आएगा, हाँ या ना? तो मैं, अरे पीएसआर में नहीं, अरे डोकरी, ये मैंने डाला क्वेश्चन मार्क। मेरे पास और एक सिंपल सॉल्यूशन है, मैं क्या कर सकता हूं ये देखो। पीसी मेरे पास आई है, मुझे उन्होंने ये बताया कि पीसी कैसे बांटनी है। इक्वली बात खत्म हो गई, पीसी बांट दूंगा इक्वली, जो बचा हुआ फिगर रहेगा वो कैश आ जाएगी, हाँ या ना? सो कैश विल नॉट बी द फर्स्ट बैलेंसिंग फिगर,
ये आपका वहम है। पहला बैलेंसिंग फिगर होगा आपके इधर जो पीसी ड्यू हुई है एबी प्राइवेट लिमिटेड से। पीसी ड्यू बनाओ बेटा पहले, शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड, शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड। बताओ शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड कितना है? 6 लाख। क्या आपने शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट बनाया क्या? तो बनाओ शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड 6 लाख। अब क्या करोगे नेक्स्ट? 6 लाख शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड, एबी प्राइवेट लिमिटेड को डेबिट किया। अब ये दोनों को इक्वली बांटोगे, किसको? ए और बी। देखो क्लियरली लिखा है कि नहीं लिखा है, पढ़ो। द पीसी वॉज डिस्चार्ज बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ equal number of fully paid up equity shares at par to A and B. So I'll write down by A, by B, 3 lakh और ये टैली। यस गो गोत्या। ये 3 लाख कहां जाता है? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाएगा क्या बेटा? टू इक्विटी शेयर्स इन एबी प्राइवेट लिमिटेड 3 लाख। एग्रीड? कहां से स्टोरी कैसे घूमी है देखा? सी का सेटलमेंट हो गया, ए और बी को जो मिलना चाहिए था मिल गया। अब उनको बोलो भाई तुम्हारा जो अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, क्रेडिट आ रहा है, तो आपको कैपिटल लेकर आना पड़ेगा, कैश लेकर आनी पड़ेगी। तो बेटा देखो ए का कितना आ रहा है? 125,80,080 और बी का 28,420। तो बेटा ये कोई भी पीएसआर रेशियो में नहीं है। 125,080 and 28,420. Will you please write it down quickly? Do write down quickly. सेकेंड इफेक्ट बताएंगे क्या? कैश अकाउंट के डेबिट साइड में, यस और नो? ये फिगर आया आपको, दिखा? आया? और देखो ये टैली हो रहा है क्या कैश अकाउंट? कोई अकाउंट है क्या जो पेंडिंग है टैली होना? है बेटा? बैलेंस शीट कोई होमवर्क नहीं, इधर ही बनानी है। 2 मिनट का तो काम है बैलेंस शीट का। होमवर्क कौन चेक करने आ रहा है वापस? तुम कौन सा करके आ जाते हो रिवीजन बैच में? अकीब नालायक आदमी है वही, अकीब नालायक। शेयर कैपिटल कितना आएगा? 6 लाख। रिजर्व्स का कोई नामो निशान नहीं है बेटा। क्रेडिटर्स हमने खुद अपने हाथों से सेटल किया है, बात खत्म हो गई है। लाइबिलिटी में कुछ है नहीं है। सो सिर्फ शेयर कैपिटल है 6 लाख, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा था। लाइबिलिटी साइड हो गई बेटा, फॉर्म में मत आ ज्यादा। असेट में पीसी जब निकाली थी आपने, तो आपने कहा था जो जो असेट लेंगे वो सारी असेट को इधर लिख देंगे तो हमारा असेट साइड भी टैली हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं ढोकले? सन्ड्री एसेट बोला था। वो मार्क्स भी एग्जामिनर वैसे ही देगा, सन्ड्री मार्क्स। ढोकला है, ढोकला एकदम। असेट्स, जब तक प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी ना, मुंह छोटा बनाकर बैठा था वो। समझ में आती तो ऐसे फुदकने लगा, ऐसे खुदुक खुदुक। असेट्स, असेट में पहला नॉन करंट असेट। ये बोल रहे भाई टेंजिबल कितनी है? टेंजिबल असेट्स डायरेक्टली बताओ। 3,12,000। गुड। और इनटेंजिबल गुडविल ये दिखा 8,000। 4 लाख। और वो करंट असेट में क्या है? इन्वेंट्री, स्टॉक इन ट्रेड कितना है? 2 लाख।
and it tallies. It gives so much of happiness. और राय बहादुर, ध्यान रहे इस एग्जाम में इन दोनों चैप्टर पर, सेल ऑफ फर्म और अमालगमेशन ऑफ फर्म पर क्वेश्चन आ सकते हैं. इज्जत से इसको कवर अप कर लेना, बिकॉज बोथ द चैप्टर्स हैव नॉट बीन आस्क्ड फॉर लॉन्ग टाइम नाउ. और जब आएगा तो 1, 2, 3 एग्जाम में लाइन से आएगा. जब बच्चे इसको पढ़ने लग जाएंगे सीरियसली कि नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तब फिर किसी और टॉपिक को पकड़ लेंगे वो. बट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट देयर कुड बी अ क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, प्यार से बाय बोलो. बाय, खुदा हाफिज.